can be happen. Sorry, relative and absolute can be happen. If you go for changing the cursor position by scrollable, fine. So first you make a scrollable, then you can go for relative and absolute. But anyhow, you cannot use dynamic cursor in .NET. You can use static cursor. You can use what is static cursor? It is giving a third record only. And cursor is fit there. You want to get next or previous records. This is static record. Forward, you could till last. Or within this, you want to go for first location, second location, from bottom to top. Okay. You can go for absolute cursor. Or you want to go for 9th record, 10th record, from top is called what? Relative cursor. But how you can make a dynamic cursor in edit.NET? We give answer, a fan of career, इसको मत चलाओ, मेरे आवाज खराब हो जाएगा. If you want to go for dynamic cursor, uncle, dynamic cursor is very rich cursor. It's very rich cursor, dynamic cursor. So look at the cycle, the chain in a cycle. Fine. It is only forward only cursor. Okay. And because if you move the chain in opposite direction, it won't give you accelerations. So cycle paddling in one direction, not in reverse direction, because you won't get a force in reverse direction. Alright, you can move reverse, but it won't give you any velocity. True? But you have got a car which has got a reverse gear, which can give you the dynamic cursor. So you can move up, you can move down in both directions. It is called dynamic cursor. Okay. And forward only is your cycle example. Data reader is a forward only. So you can make a scrollable cursor. You can go to desirable location. But uncle, after reaching to the desirable location, and from that point you want to go up record, you won't get. Listen. So मैं पता क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप 9th रिकॉर्ड पे पहुंच गए बाय रिलेटिव. उसके बाद आपको उस 9th के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, नहीं ऊपर का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. जैसे you have got a yahoo.com mailbox is an absolute angle dynamic cursor. First record, last record again previous, and again previous to last means 99 number. Click on previous, you can come out 98. Again you click on 98, it can give you 99. Again you go to first record. Again you click on next. Means I am trying to convince dynamic cursor is very rich cursor. Why it is removed in .NET? It takes more block memory in the server side. Like, take one example. You move, you stand, move, and come back. Again you move, again you come back. It means you are increasing the stress on the server side. So why .NET and Java, both languages, has removed this dynamic cursor? Because you are making a block, then you have got a chunk of data, and you are having a remote control, which is giving you channel number 59, again you minus 57 or 58. It is increasing the server side memory, which can degrade the performance. What is relative cursor? सुनो ठीक से तुम्हारे लिए बोल रहा है. What is relative cursor? By relative, line number 7. Now cursor is giving you controlling go to statement. It is putting the pointer on the 9th record. Then that row is blocked. By the same cursor, you won't get 8th record. You won't get 11th record. Unless or until
if you don't deallocate the cursor memory. पता मैं क्या बोल रहा हूँ कल? आपने कर्सर को उठा के 9th रिकॉर्ड पे रख दिया, किसके द्वारा? रिलेटिव कर्सर के द्वारा। अब आप 9th पे आपका कर्सर फिक्स हो गया, इट इज कॉल्ड की सेट। व्हाट? की सेट। अब 9th रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अब जॉब्स प्रोग्राम में ना कर लो, अब तुम 9th से 8th में नहीं आ सकते। इट्स नॉट अ डायनामिक कर्सर, ठीक है? इट इज ए की सेट कर्सर, इट इज स्टैटिक कर्सर, फिक्स हो। Write a program in database where you can have a 7th, ठीक है, record you can show. Okay. But someone asks you, make a cursor, and first you put your cursor on 9th record, and you go to 3rd record, and you go to 1st record. Say simply, I cannot do, because in this case, how you can do, how programmatically you can do, first you show the 9th record, then deallocate as memory, because I said a pointer is fixed by nature because it is pointing the first block and you're moving in one direction. तो pointer से अगर move करना शुरू कर रहे हो और you reverse back, it is as a forward only. तो relative और forward only में difference क्या है? Forward only और sequential, but और relative में क्या है? You can go to a certain desirable location and from that point you won't go back. So how you can make a, so why .NET and why .NET has removed the dynamic cursor? It's a rich cursor. It takes more memory. So now fortunately in ADO we had dynamic cursor. We have dynamic cursor. So, तो जान के सारे कर्सर का सपोर्ट है ADO.NET में, बस एक कर्सर को छोड़। अगर हमने देखा है यहाँ पे डेवलपर्स इतना गलत कर जाते हैं कि रिलेटिव कर्सर को बोल देते हैं डायनामिक कर्सर, वो भूल जाते हैं स्क्रॉलेबल कर्सर है, ये मतलब डायनामिक कर्सर नहीं है। जब पॉइंटर 9th रिकॉर्ड को पॉइंट कर लिया, अब आप नाक रगड़ लो और 8th रिकॉर्ड पे नहीं आ सकते। उस केस में तुम क्या करते हैं प्रोग्रामर? डीएलोकेट करके फिर कर्सर को ओपन करते हैं और फिर रिलेटिव कितना पे जाते हैं बोलो? 7th पे। तो उस डीएलोकेट ओपन डीएलोकेट करके 9 7th से दिखा सकते हैं। बट आप सोचोगे कि 9th पे चले गए और बिना डीएलोकेट के हम 7th दिखा दें, ये नहीं कर सकते। एक ही बंदा कर सकता है, वो डायनामिक कर्सर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सपोर्ट नहीं है क्योंकि इट टेक्स मोर मेमोरी इन सर्वर से। लुक एट ना, इंक्रीजिंग अ चैनल और डिक्रीजिंग अ चैनल, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, आपको छोड़कर गधों को, पर हर प्रेस के लिए मेमोरी नीड है। अगर वो प्रेस कर रहा है प्लस पे और माइनस पे भी आ रहा है, देयर इज अ फ्रिक्शन ऑन रनिंग ऑन द सर्वर साइड। सो oh my God, the first line, dynamic cursor are opposite to what? Static cursor. Dynamic cursor reflect all changes made to the row in the result set when scrolling through the cursor. Data values, अब इसको पढ़ते रहना, ठीक है? Oh my God. If the execution plan choosing to execute a query for dynamic cursor is using a heap scan and conditions are such that a page or table lock is required. So deleting a row may result in the whole page being deallocated. In this case, making use by dynamic cursor or positioning may become invalid and subsequent. अब इसको पढ़ोगे अंकल, पूरा पढ़ोगे, मैं दिखाता हूँ। Types of cursor. उसे फंसाना है कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं फंसाना है उसको। तो उसको मैंने प्रोग्राम बना के दिखा दिया। ऑपरेशनल इन रिलेशनल डेटाबेस एक्ट ऑन अ कंप्लीट set of rows, no problem. The set of rows returned by a
set of rows returned by select and single row by cursor. Consist of all the rows that satisfy the conditions with the where clause. This complete set of rows returned by a statement is known as result set. क्या बात है? Application cannot always work effectively with the entire result set as a unit. Great answer. These applications need a mechanism to work with one row, a small block of rows at a time. क्या answer है? Why cursor is needed? Sometimes I don't want to catch all the items of a shop. Sometimes the logic says I require certain records of that shop. You give me rinse sabun, you give me surf, you give me salt, the shampoo. I don't want entire records. So what is result set? What is result set? And what is your data reader? And what is your record set and data set? The result set is called data set. By adapter.fill. तो सबसे बेटा टॉप पे आपका रिजल्ट सेट है, वो जनरलाइज फॉर्म है, और उसका स्पेशलाइज बोलो कौन है? डेटा रीडर है, डेटा सेट है, और आपका बोलो कौन है? रिकॉर्ड सेट है. एंड अनफॉर्चुनेटली यू कैन से फॉर डॉरेंट डेवलपर्स इट्स अ बैड न्यूज. द रिकॉर्ड सेट जो मेरे जमाने में था, दे सपोर्ट डायनामिक कर्सर, and data reader supports only forward only cursor, and data set is a cursor free, it is a disconnected mode, na? So here the application cannot always work efficiently with the entire. यार इस लाजवाब लिखा हुआ cursor extended result processing by doing the following: always positioning at a specific row of result set, retrieving one row or block of rows from the current position in the result set. डायनामिक कर्सर यार, इसका डेफिनेशन कहाँ पे? डायनामिक कर्सर immediately reflects any changes made to underlying tables. That's why read only and forward only is good, but does not support what? Any updates. That's why data reader does not support any updates. Fine. But I want to go for finding a मुझको मिल नहीं रहा है इस वक्त, क्यों? ओ यार प्रोग्राम तो देख ही चुके हैं. तो मैं सुनिए ये बताना चाह रहा हूँ आपको, if you go for interview, you have to have very sound knowledge of dynamic cursor. It's very expensive cursor. We don't want to go for finding a program because we have made several programs for cursor based. Fine. So बेटा बहुत ठीक से नहीं रहता वहाँ पे उसमें डायनामिक कर्सर. ओके यस मिल गया. देखो द एब्सोल्यूट फेस मिल गया बेटे आपके लिए जो मैं खोज रहा था. द एब्सोल्यूट और रिलेटिव इज नॉट सपोर्टेड विद द वर्ड. ग्रेट आंसर, यही मैं खोज रहा था. अरे बेटे मैं इस बता रहा हूँ कि आपका जैसे लड़की का फ्री मूवमेंट था बॉडी का भी, जाना आना आना जाना. लेग मिलेगा तो जा 2 किलोमीटर वहीं पे रुक जा, और वहाँ से बैक नहीं आ सकती. तो उसको बैक करने के लिए मुझे याद करो पॉइंटर फ्री करना पड़ेगा, फ्री पॉइंटर, और डीएलोकेट करना पड़ेगा. तो डीएलोकेट करने के बाद तो उसके बाद आप 7 से 9 जा सकते हैं, 9 से 8 आ सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है,
But dynamic cursor is very rich cursor, and fortunately, the operating system support dynamic cursor. But I said na, if you wanna check, uncle सुनिएगा ठीक से, if you wanna check the performance of the computer, you can check. Open the file of Word is having more than 100 pages, not say 100. There is a Word file is having several pages, and try to move by the cursor. आपको सिस्टम का औकात पता चल जाएगा, आपको सिस्टम का औकात पता चल जाएगा. और लास्ट में लिखा है नॉट रिस्पॉन्डिंग. इफ मैन इज सिक, सो मैं तुमको देख के बोल रहा हूँ, इफ मैन इज सिक, might be fall with maybe fever and all, and try to say like this, he might be but fell down. एक आदमी कमजोर हो चुका है अपने बीमार से, अब उसको बोलो तेज दौड़ेगा, वापस आएगा, दौड़ेगा, he can fail at any moment. The better dynamic cursor takes more memory to run. ठीक है, अब देख, प्रोग्राम नहीं चाहिए प्लीज. देखो बेटा, देखो ना क्या लिखा, फेच फर्स्ट, फेच नेक्स्ट, फेच प्रायर. अरे तुम नंबर दे दो यार, ठीक है, ये ऊपर चलता है ना. हाँ, फेच लास्ट, हाँ, एब्सोल्यूट. पर बेटे चक्कर इसमें क्या, हमने नेक्स्ट कर दिया ना, नहीं होता, फिर प्रीवियस नहीं हो पाया, तभी नहीं होगा. मैंने कहा ना होगा, फिर पंगे मत करना, होगा, या कोई डीएलोकेट करना पड़ेगा वो लोग उसको मेमोरी. बट बेटा डायनामिक अभी करके दिखाता हूँ, अगर डायनामिक कर्सर होगा, नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीवियस, ये सब कार चलाते हो ना, बिल्कुल डायनामिक कर्सर होता है. देयर इज ए वेरी गियर, 5 गियर विद अ रिवर्स गियर, टोटली डायनामिक कर्सर. आई कैन गो टू एनी गियर, आई कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द गियर. इसको डायनामिक कर्सर. बेटे मैं जितना तुम गाड़ी को अप डाउन करोगे, पीछे करोगे, आगे करोगे, देखो बेटा कितना फायदा होगा. लूप लगा के लाभ तक ले आए. मैंने कहा ना बेटे, जुगाड़ तो है मेरे पास, मगर आप कर्सर के द्वारा नहीं कर सकते. आपको सारा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको मैं दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, ठीक है. देखो मेरे साथ द एब्सोल्यूट फेच सवाल उठता है. बट आई डोंट वांट टू गो फॉर कंपेयरिंग विद दिस. आई वांट टू गिविंग यू वन एग्जांपल. आई सेड ना, आई कैन हैव अ सिविल एग्जांपल, आई कैन हैव, ठीक है. पर तुमने बेटा एक बार अगर आपने एब्सोल्यूट कर दिया ना, ठीक है ना, तो आपको वही आके रुक जाएगा वो, समझ गए. अभी प्रीवियस दिया तो बेटा पता है तुम क्या बोलना. इट इज अ स्क्रॉलेबल with a certain positioning, and you wanna go up, deallocate the memory of that cursor, and again go with the fetch. आपको पर फेच के लिए क्या करना पड़ेगा, deallocate करना पड़ेगा, ठीक है. तो लाजवाब दे रखा, सारे एग्जाम्पल दे रखे, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे, सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल इसमें दे रखे. प्रोग्राम देखी चुके, कितना प्रोग्राम देखोगे अभी. तो आप अभी क्या करो, अरे बेटा कितनी बार बोलो यार, यू वाना गो फॉर पोजिशनिंग विद नेचुरल नंबर्स. विद नेचुरल नंबर्स 3, 2, 1, नो माइनस इज देयर, यू गो विद रिलेटिव, ठीक है. एंड यू वाना गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है. बट उनको मैंने कहा ना बेटा, तुम कोई भी कर्सर यूज करो डायनामिक को छोड़कर. आप जिस पॉइंट पे पहुंच चुके हो, आप उसके पहले का रिकॉर्ड चाहिए, बाद का रिकॉर्ड, आपको हर बार लिखना पड़ेगा फेच डीएलोकेट, फेच डीएलोकेट. सो फेच प्रिंट डीएलोकेट, फेच प्रिंट डीएलोकेट. रिलेटिव जब स्पीड आते हैं ना, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो सी रिकॉर्ड के बाद रिजल्ट देता है, वो अगला नेक्स्ट नहीं आएगा, नहीं जाएगा, नहीं 1 2 3 नहीं करेगा. बेटा आपने दे दिया, फेच 3 दे दिया ना. हाँ, तो उसमें कितना हो गया, पीटीआर प्लस 3 हो गया ना. उससे लास्ट मेमोरी रिटेक करके उसी में 3 दे दिया. मैं तो आपको बोल रहा है तब से यार, आप इससे क्या बोला करे, अगर आप 9th रिकॉर्ड पे हो, आपका 8वां नहीं आ सकता है, और 7वां नहीं आ सकता, सॉरी 10वां नहीं आ सकता है, और आप नहीं 9 का 10 होगा ना, और 9 का आपका पहले का 8वां नहीं आ सकता. तो नहीं जा रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा. आप कहीं बेटे खोजना इसमें
डायनामिक कर्सर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। AD.NET में सपोर्ट किया डायनेमिक का? नहीं चक्कर है ना, ये डेटा रीडर स्टैटिक करता है। फॉरवर्ड ऑन रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली, मत करना स्टैटिक, रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली। डेटा सेट को बिठाना चाहिए, उसको तो लाना ही मत, डेटा सेट को तो कर्सर में काउंट ही मत करना। इट इज फ्री ऑफ कर्सर, इट इज फ्री ऑफ कर्सर। उसके पीछे कर्सर नहीं होता? कर्सर है ही नहीं बेटे, डेटाबेस का टॉपिक ही नहीं है। मतलब आपको मैंने फर्स्ट लिखा था डेटा सेट क्या है, इट इज कर्सर फ्री आर्किटेक्चर, जिसका बोल सकते हो क्लाइंट साइड है वो। ये आपको जो बेटे पॉइंटर है ds.tables रोज 00, अरे कराची कॉपी देखो ना खोल के यार, ds.tables रोज 00, ये कहाँ पे हो रहा है? डेटा सेट पे हो रहा है यार। तो उसका बेटा जो पॉइंटर है वो डेटाबेस की मेमोरी में नहीं है, ठीक है। तो अब तुम देखो, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे, आप समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास 3 चीजें कर्सर को इंप्लीमेंट करने के लिए। रिकॉर्ड सेट, सुनो पहले, लगता है डेटा बूस्ट, इसमें गया, लगता है पहला है रिकॉर्ड सेट, सेकेंड है डेटा रीडर और थर्ड है डेटा सेट। तो कुछ देख रहा हो, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे प्रोग्रामर कर्सर को कम करता जा रहा है। ये मत कहो बेटे कम यूज हो रहा है, ये मत कहो। धीरे धीरे प्रोग्रामर कर्सर को कम यूज करता जा रहा है। पूछो क्यों? रिकॉर्ड सेट मेरे जमाने का 100% सपोर्ट करता है, डेटा रीडर कुछ कम कर्सर सपोर्ट करता है, और डेटा सेट कर्सर सपोर्ट करता ही नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कर्सर। अगर कर्सर करना है तो कर्सर को तुम कहाँ पे यूज करो? प्रोसीजर में। और बोल यार बच्चे वाले काम मुझे करवाना मत, पता नहीं क्रिएट प्रॉक नेम, कर्सर का प्रोग्राम लिख दो, एसक्यूएल कमांड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में कर्सर का प्रोसीजर का नाम दे दो, और जब बेटा रिट्रीव करोगे ना तो आप स्केलर से करोगे, जैसे करोगे स्केलर, एक ही रो देगा यार, अरे एक ही रो देगा ना स्केलर, रीडर तो दोगे नहीं, आप स्केलर दोगे तो कर लोगे यार। अब पूछता है तुमसे कि वाई AD.NET हैज रिमूव्ड द डायनामिक कर्सर, इसका आप मेरे को साइंटिफिक रीजन दो। पता है अंकल क्या, बच्चे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? अंकल 50 यूजर अगर डेटाबेस से कनेक्ट करता है, 50 कर्सर बनते हैं, 50 रिजल्ट सेट बनते हैं। क्यों? आप गए शॉप पे, आपकी आंख, ये बच्चा गया शॉप पे, इसकी आंख, तुम्हारी शॉप, तुम गए शॉप पे, तुम्हारी आंख, 3 आदमी एक शॉप पे, 3 कितनी बनी बोलो? ब्लॉक बनी। तुम अपने आंख को ब्लॉक कर रहे हो, वो शॉपकीपर तुम्हारी जगह को ब्लॉक बोल रहे हो, तो बोलता है रश। तुम्हारे आंख को नहीं देख रहा, तुम अपने आंख से सामान ले रहे हो, बट वो देख रहा है यार मेरा मेमोरी चला गया। तो 15 दुकान पे बंदे गए, 15 ब्लॉक की आवश्यकता है, और हर ब्लॉक में क्या आ रहा है बोलो? उसका अपना रिजल्ट सेट आ रहा है। तो 15 ब्लॉक बना बेटे, 15 ब्लॉक में क्या है? रिजल्ट सेट। और रिजल्ट सेट क्या आपको मैंने दिखा दिया, सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम, सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम, सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम। रिजल्ट सेट में तो पूरी टेबल आ गई, वो पूरा सेट आ गया। अगर उसका सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम लिखा, पूरा उसका रिजल्ट सेट आ गया पूरा। बेटे मेरा सुनना, मेरा डेटाबेस ये भी नहीं, उसका स्टूडेंट टेबल, अंकल ने कनेक्शन बनाई, आपने कनेक्शन बनाई, आपने कनेक्शन बनाई, अंकल ने कमांड पास करी, बोलो कमांड से क्या होगा? इनका अपना क्या बनेगा? रिजल्ट सेट बनेगा। अरे बोलो यार, इन्होंने कमांड, आपने बेटे कमांड पास करी, आपकी बोलो क्या बनी? अपनी रिजल्ट सेट बनी, आपने बनाई, तो बेटे 3 कर्सर बन गए बैकग्राउंड में, बन गए। सराज उठो, वहां डरो मत, उठो, मैं कुछ नहीं कर रहा, चिंता नहीं, आप भी उठो। अरे चला कर रहा है एक मिनट, तुम उठो यार, तुम उठो, आप भी उठो। अब अंकल देखिए, आप शॉपकीपर, ये तीनों बच्चे डायनामिक कर्सर बन के शॉप पे आए, तीनों मेमोरी एलोकेट हो गया, बहुत खुशी के बाद मेरा बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ने दो, अच्छी बात है, 3 कस्टमर हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मेरा दिन कब बढ़ेगा भाई। बट तेरा टेंडेंसी देख क्या है? ऊपर देखना, फिर नीचे देख, फिर नीचे देख, फिर ऊपर देख। तो आप अंकल को क्या बोल रहे हो? रिन साबुन दो। नहीं नहीं अंकल, रिन साबुन मत दो, सर्फ दो। अंकल चुप हो गए। नहीं नहीं अंकल, नीचे वाला मत दो, ऊपर वाला दो। ये क्या बदतमीजी है?
अंकल को नहीं करना है, अंकल की वो Exactly. अंकल की चलिए ना। तो मूवमेंट किसका हो रहा है? वो शॉपकीपर का हो रहा है यार। 4 आदमी बोलेंगे तो 4 कहाँ का देंगे? वही मैं पहली बार गया था लाइफ में, वहाँ कहाँ गया था यार, होती जम्मू के पास क्या है वो, वैष्णो देवी गया। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं फील ही नहीं कर पाया मैं आया कहाँ। मेरे को आगे खड़ा कर दिया, पापा पीछे थे, ससुर जी मेरे, ऋचा, मम्मी। अब उनको आइडिया था कैसे देखना है। मैं जब इस सेकेंड पर देखा, आगे बढ़ा दिया मेरे। अब पीछे किधर? तो लगा नहीं मैं आया भी वैष्णो देवी देखने, अब क्या देखा भगवान जाने। तो इतना आइडिया नहीं था, इतनी भीड़ है, इतना पहली बार लाइफ में गया था। फिर पापा के कोई जानने वाले थे, फिर दोबारा लगवाया लाइन में। हाँ अब ठीक से देखा। तो क्या देखा, दोबारा लगवाया। क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, डीएलोकेट। उस मुझे लाइन से बाहर निकलना पड़ा और आधा पौना घंटा बैठ करना पड़ा वो। तो बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक कर्सर का मूवमेंट अगर टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप है, मतलब एक अंकल उस जब बच्ची का जब तक पूरा प्रोसेसिंग नहीं हो जाएगा, सेकंड कर्सर को ये इंटरटेन नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। अच्छा आप बोलो अरे इनको प्रॉब्लम है, उनको ये दे दो। एक मान लो तो बच्चा क्या करो, बच्चा गया तो 5 आदमी को तुरंत भेज दिया। एक बच्चा का दिमाग खराब कर देगा, अंकल ये टॉपिक, अंकल वो टॉपिक घुमाता रहेगा, उसी में बहुत सारा टाइम। उसको उसी समय क्या होता है, बच्चा माँ के सामने होता है, हमारे सामने नहीं होता। अरे इसमें ये दे दो यार, उसके हाथ में पकड़ा दो। बट अंकल कोई एक ही विद्या। आप आज के बच्चों को देखो ना, दुकान में ऐसा घुसेगा ना, उधार मान के सब कुछ लेके आ जाएगा। अगर पकड़ोगे तो फिर भाग के जाएगा। 30 कस्टमर आ गए तो कैसे भीड़ लगेगी और कस्टमर नहीं आएगा। हाँ जी आपको ऐसे फटाफट पूछेंगे, इनको ये दो, इनको ये दे दो। आपका अरे यहाँ पे क्या है कि आप मल्टीपल शॉप की फटाफट फ्री कर देते। वहाँ पे क्या है, यही सिस्टम होता है। नहीं अंकल आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बता रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। सुनो करे, अंकल के शॉप पे अगर 5 शॉपकीपर है, मतलब 5 आदमी है, तो बहुत कम है। यही तो बोल रहे हैं, यहाँ तो एक ही आदमी है, यहाँ एक ही शॉपकीपर डेटाबेस है। अगर आप अंकल अकेले हो दुकान में फिर क्या करोगे? नहीं है दुकान, अंकल बच्चा आ गया तो देखो भी क्या होगा। तो दुकान में मैं तो सुनाई दुकान भी कर दूँ। एक सामान है उनको। तो ये क्या बोल रहे हैं, 5 आदमी को हैंडल करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 बंदा है, मान लो 3 बंदा है, यहाँ तो बेटे एक ही बंदा है, एक ही डेटाबेस का इंस्टेंस है। ऊपर से लड़की की बदतमीजी, ये दे दो कभी ये दे दो, वो गधा था यही गधा, ये दे दो वो दे दो, तो नहीं है समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे वो बहुत बढ़िया है, जैसे आप किसान का बेटा है। आप देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ, एक सीडी में 10 सॉन्ग्स पड़े हुए, आप बच्चे के हाथ में जब रिमोट कंट्रोल देके देखो फिर क्या होगा। साला पहुंच जाओगे पर एक गाना नहीं सुन पाओगे। नेक्स्ट अब मेरे को आदत हो गया होंडा में, उसमें प्लस माइनस है, तो मेरे काले बैठ के देखो, मेरे को एक गाना नहीं सुनने दोगे, हाथ में मेरे हैं, तो उसमें क्या होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट प्रीवियस। तो आज बेटा आपको MP3 आ गया ना, आपको MP3 आ गया, पेन ड्राइव आ गया, पहले के हेड खराब हो जाते थे इतना ज्यादा अप डाउन करने से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायनेमिक कर्सर से फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बोलो कहाँ पे, सर्वर पे। और अंकल बोल रहे हैं, ये भी अपने लेवल पे सही है, इनके दुकान पे 5-6 रनर है, तो 5-6 रनर एक बार में 5-6 कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ तो एक ही रनर डेटाबेस का इंस्टेंस है, तो डेटाबेस में डायनेमिक कर्सर क्यों रिमूव कर दिया कि तुम आओ और एक ऐसे मान जाओ। नहीं बेटे, मतलब आप ऐसे मांग जाओ, बीच में झिगझैग नहीं करने दूंगा मैं तुमको। तो बेटे फुल स्कैन कर लो एक बार, पूरा सूची पढ़ दो, मैं तुमको रिवर्स नहीं करने दूंगा। तो उसके लिए आपको बनाना, तो देखा रिकॉर्ड में तो इन्होंने क्यों रिमूव किया। जब डेटाबेस था उतने क्लाइंट नहीं थे, सुनते चलो, डेटाबेस था उतने क्लाइंट नहीं थे। बच्चा आ जाए दुकान पे 100 चीज मांगने दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, जहाँ बेटे रश बढ़ेगा वहाँ मुझे मुश्किल होगी। तो उन दिन उतने सर्वर पे कर्सर नहीं बनते थे, इसलिए डायनामिक कर्सर का सपोर्ट था। अब तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या हुई कि एक सर्वर स्टैंड खुला और 1000 के आ गए, बोलो क्लाइंट आ गए,
उस केस में अगर तुम डायनामिक कर्सर करोगे, सोचो एक कस्टमर, एक शॉपकीपर का क्या होगा, अभी डेटाबेस इंस्टेंसेस का क्या होगा। इन्होंने कर्सर का मूवमेंट कम करना शुरू किया। अब क्या बना दिया, फ्री ऑफ डिलीवरी। अब क्या हो गया, फ्री ऑफ कर्सर हो गए। तो अब यहां आकर इनको मैं कैसे समझाऊं, बच्चों को एक प्रोग्राम बना के मैं दिखाऊंगा। देखो अब देखो डायनामिक कर्सर क्या होता है वो देखना जरूर। नहीं अंकलवानी बना सकते हैं, यही तो बदला है। डॉटनेट में सपोर्ट ही नहीं डायनामिक कर्सर। एक तो हम डिस्कनेक्टेड की ओर जा रहे हैं और पहले कनेक्टेड थे, तो कनेक्टेड से हम परेशान हो चुके हैं और उसका तुमको हम डायनामिक कर्सर दे दें और परेशान हो जाएंगे। तो बच्चे को बैठने दो कार के अंदर, अब रिमोट छिपा के रख दो। कुछ हद तक तो कंट्रोल करोगे आप। ये आ गया। इस बेटे प्रोग्राम बैठ जाओ, इस प्रोग्राम को लाइफ टाइम संभाल के रखना। अगर बंदा आ जाए कुछ नहीं पे उतर जाए, नहीं आप मुझे डायनामिक कर्सर बना के दिखाओ। और डॉटेड में आप सिंपली मना कर दो, डॉटेड डज नॉट सपोर्ट डायनामिक कर्सर। डेटा रीडर के पास सपोर्ट है रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली का, और डेटा सेट क्या बोल कर्सर फ्री है, क्यों डिस्कनेक्टेड है। तो पता क्या करेंगे अंकल, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, हम एक बना देंगे, चलो मैं इनको इंट्रॉप कर लेंगे। बोलो कौन इंट्रॉप? अब ये बस 2 कॉलम रखो। पहले मुझे करने दो। चलिए तब नहीं वेट, क्या देखा? यदि एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी को ऑक्युपाई कर देगा और जब तक उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती। बेटे प्रोसेसिंग की टाइम देखो ने क्या है तुम्हारी, कि आप फिक्स नहीं होना यार, चक्कर ही उठ रहा है। अब डायनामिकली मांग रहा हो मेरे से यार, तो हाउ लॉन्ग 1% विल सर्व फॉर यू। तो रश कम नहीं कर सकते हैं, दुकानदारी कम नहीं कर सकते हैं, बदतमीज में तो आ सकते हैं। सर आप एक बार बोल दो क्या लेना है आपको, उसके बाद भी बेटे नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व, तभी नहीं हो पाया, या तुम डिस्कनेक्टेड बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम घर ही बैठो, तुम ऑर्डर दे दो मेरे को। आप जाओ नेहरू प्लेस में, छोटे छोटे दुकान ऐसे ऐसे हैं, जगह भी नहीं पैर खड़ा रखने का। सारा काम ऑर्डर से होता है अंकल, मैं खुद देखा होगा, सारा काम ऑर्डर से होता है, सारा काम ऑर्डर से। घर बैठो तुम, अब घर पहुंच जाएगा। इधर प्रोग्राम बना कर दिखाना होगा। क्या कर दिया, ओडीबीसी यूज किया बालक? जावा में ओडीबीसी किया, इडियट। ओडीबीसी ओएस का फीचर है। तो पहले मेरे जमाने में, अभी भी अंकल आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज। IMS का बच्चा तो बिरला सबसे सिलेक्ट हो गया है, उसको बोलता है कि तुम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग सिक्योर कैसे करोगे। बोला आप इंक्रिप्शन कर लो, बोला नहीं ओडीबीसी करके। IMS का बच्चा था, 2009 की, 2010 की बात, रिजेक्शन हो गया। और अंकल बोलता है कि तुम प्रोवाइडर कैसे लिखते हो। उसने कहा वो डेटा सोर्स इनिशियल कैटलॉग करना ही, तो मेरे को डॉटनेट में बिना प्रोवाइडर लिख के कनेक्टिविटी करके दी। वो 10 की बातें हैं। IMS डासना का बच्चा था, वो डासना ये कौन सा कॉलेज है, बिना प्रोवाइडर लिख के। मैं आपको दिखाता हूँ ये इडियट कहाँ चला गया ये। तो देखिए अंकल, अभी आप डॉटनेट आ जाइए, डॉटनेट आ गए। लिखना मत कुछ प्लीज। ये है
क्या करोगे? एक एग्जाम्पल दो, तो मेरे को डेटाबेस कनेक्टिविटी का, तो मतलब क्या लिखो? वही मैं लिख के पढ़ चुका हूँ, ये लिखोगे? लिखोगे? पब्लिक बेटे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखना लाइफ टाइम, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टॉप लेवल MNCs के, अब तो मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गया, मैं जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए बाहर, मैं रात का शाम का, चलो मेरे साथ दिखाते हैं। तो अब मेरे साथ ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, सारे बाहर के। तो जितने बेटे मेरे प्रोजेक्ट्स हैंडल करें टॉप लेवल MNCs के, अंकल कहीं भी वहां पे प्रोवाइडर नहीं। प्रोवाइडर में दिखता है वो तो कौन? कंसल्टिंग। उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं अंकल सारे यूज होते हैं ODBC। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब दिखाते हैं पब्लिक, मतलब मेरे पास जितने बाहर के ट्रेनिंग आते हैं उसमें कहीं में प्रोवाइडर नहीं लिखता। प्रोवाइडर में लिख ही नहीं सकता कि करोड़ों करोड़ों के डेटाबेस होते हैं, वो अरबों के डेटाबेस होते हैं। तो प्रॉक्स हमने क्वेरी तो सेव कर लिया प्रोसीजर से, कंसिस्टेंट कैसे सिक्योर करोगे? मैं अंकल ये बोल रहा हूं, कौन? न्यू वर्ड SQL कनेक्शन, और यहां लिखते हैं DSM फिजिकल टू, और यहां पे आप DSM बनाएंगे ODBC से। ये लिख दिया, अब आगे लिखना बेवकूफी, ये भाई कमांड वेट क्वेरी, ये करके मुझे परसों फीडबैक दो, चला के कल दो फीडबैक मेरे को। यस क्या यार बेटे, अब DSM डेटा सोर्स नेम में अंकल जी का नाम आ गया। अब वहां तक बनाएंगे, वहां जाके बनाए, अब यहाँ बनाएंगे। मतलब मेरे पास सिक्योरिटी का एन्क्रिप्शन से भी मिल जाती है बेटे, उसको स्लो करता है, स्लो करता ना, पर तो ये एन्क्रिप्शन का प्रॉब्लम क्या है? डिक्रिप्ट से करो बैठ, जब मैंने क्लास में कराया वो मैं दिखा रहा प्रोग्राम मर जाओगे नहीं भाई। पर आप लोग कराया ना बाइट को, बेटे वो सिलेबस कवर करवाया था। नहीं, कुछ पल तक के लिए सिक्योर है यार, चलो सिक्योर लो, 100% सिक्योर है। बताओ इंडिकेशन में क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो समय लगा, जाओ गधे कांट मार दो, देखा ना गाँव में गधा में तो कुछ बांध दिया ऐसा, सलग कूदा ही नहीं गधा वो। टिकट करने में समय लग गया, एक बार क्लिक कर दो तो वो काम ही नहीं करता। बेकार है साला वो तो सिलेबस ऐसे पढ़ा दिया आपको मैंने, ODBC पे आ गए। ये सबसे लेटेस्ट एडवांस है, लेटेस्ट नहीं है, मेरे जमाने का है। अरे मतलब सबसे बेस्ट तरीके बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है कनेक्टिविटी का। जैसे मैंने ट्रेनिंग ली थी सेंटर में, जब आप फरवरी नए आए थे, ब्रिटिश जो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इस रूम के अंदर, तो यही ODBC यूज करते, मतलब ही नहीं कि मैं यूज कर दूं वहां पे। अब यहाँ पे अंकल आएंगे सिस्टम DSM। अब यहाँ पे फिर से करूँ क्या? एक क्लिक करो ODBC पे, सिस्टम DSM पे, और ऐड पे क्लिक करा, और अंकल लास्ट में आ गए SQL सर्वर। फिर से करूँ ODBC पे क्लिक करो, सिस्टम DSM में गए, ऐड में गए, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है? MS Access से, Oracle से, किससे करना है? SQL से करना लो, Oracle से करना, Oracle से कर लो, उसके ऊपर Oracle लिखा होगा, यह क्लिक करो। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, OS का फीचर, और फिनिश किया, और अंकल यहाँ नाम दे दिया, बोलो कौन? जो नाम मैंने दिया था, कि नाम वरना ठीक कर देंगे। अभी डेटा सोर्स ये हो गया, अब यहां पे आप क्या कर दो? चल गया बात, डॉट देना होता, डॉट मीन्स की करंट डेटाबेस, आई मीन करंट सिस्टम। अब हमने डॉट दिया, और क्या आ गया? नेक्स्ट किया, अब देखिए अंकल क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, इवनिंग आ गया, कहाँ है?
हो गया, अंकल जी आ गया, ओके कर दो। और यहाँ पे क्या कर दो? अब अंकल जी किससे कनेक्ट कर गया बोलो? इवनिंग डेटाबेस। अब बेटे तुम सिस्टम के सिक्योर ओएस पे बैठे हो, सवाल ही नहीं उठता है कि तुम वहां पहुंचा। बोलो कहां पे? कंट्रोल पैनल तो मेरा छेड़ दो। इससे हाई एंड बैंकिंग डोमेन प्रोजेक्ट, जितना हमने प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग लिए हैं, सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ प्रोवाइडर। लेकिन इसमें तो हमारा डेटाबेस जी में था, आप कहते हैं कि बड़े में कहीं और बेटे डेटाबेस वाले तू लेना ले, दोबारा फिर खोलो। डेटाबेस क्या होगा बेटे? डाली तुम्हें क्या दिखा है? आपने गौर गधा है, चक्कर है तू ना। ऐड पे क्लिक, यहाँ क्लिक करा, ऐड पे गए, नीचे आ जा, स्वर पे आ जा, नाम दे दिया, बोलो कौन? सुनील दे दिया नाम। अब सुनील का जो डेटाबेस है, नाम क्या दे रहा? सुनील का डेटाबेस श्रुति हैंडल कर देगी। ये नले कहाँ बैठी है? PC9 पे। बोलो कहाँ बैठी है? PC9 पे। डार्लिंग यहाँ बोलो क्या दे देंगे? PC9 दे देंगे। ये हैंग ऑन क्यों हो गया? ये नेटवर्क खोज रहा था। और बोल यार यहाँ PC9 दे देंगे बेटा, और देखिए नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा? बोलो डेटाबेस का नाम आएगा। नहीं ऐसा। अभी अगर आप लोकल पे काम कर रहे हो तो लोकल पे डॉट दोगे, डॉट दे दिया, नेक्स्ट करा, कुछ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट करना है। और देखिए क्या मांग रहा है, देख क्या मांग रहा है मुझसे, देखना क्या मांग रहा है? डेटाबेस का नाम। अभी डार्लिंग दिक्कत क्या? डेटाबेस लोकल है, तुमने डॉट दे दिया था तो नाम दे दिया श्रुति वाले सिस्टम का, आईपी एड्रेस दे दिया, आईपी एड्रेस यार। अब ये चूज करा, इवनिंग में चले गए, इवनिंग ले ली और नेक्स्ट कर दिया। इसका डेटाबेस ओएस लॉग मेंटेन कर रहा है, वहां तक आप बेटे पहुंच ही नहीं सकते हो। और फिनिश कर दिया, टेस्ट भी कर लिया, कोई एरर नहीं है, ओके। और हो गया। और सबको मैंने कहा कि अगर आपको डेटाबेस यूज करना है, आप अंकल जी यूज करो। तो यहाँ पे डबल कोर्स में क्या पास कर दिया बोलो? किसी को नहीं, किसी को बेटा बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, किसी को नहीं पता कि अंकल जी किस डेटाबेस से कनेक्ट है। और तुम चाह के गुरु मेरे सिस्टम का कंट्रोल पैनल पे क्लिक नहीं कर सकते, क्यों? यू हैव इनसफिशिएंट राइट्स। जब हम सर्वर पे जाएंगे तब वो बंदा कर ही सकता है ना, वो बंदा कर ही सकता है। ये तो हमारा रहता है ना। नहीं अंकल, यहाँ मेरा डेटाबेस चल रहा है, ठीक है अंकल। और यहाँ इंस्टॉल है मेरा .NET। ये चलो डेटाबेस वहाँ इंस्टॉल है, डेटाबेस वहाँ पे है, यहाँ मेरी .NET है। तो यहाँ के मैंने ODBC पे क्या लिखा? अंकल जी लिखा। तो वो ODBC कैसे कनेक्ट कर गया? श्रुति के सिस्टम से। ये मेरा यहाँ पे ASP.NET है, ASP.NET। आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरा पेज रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप चलो यहाँ आ भी सकते हो, आप आ जाओ, क्या दिक्कत है? आप नहीं बेटे, डेटाबेस वाली बात नहीं, आप यहाँ आ जाओ। आप जब आओगे आप ये एक्सेस नहीं कर सकते। बोलो कौन? आप मतलब कंट्रोल पैनल पर क्लिक ही नहीं कर सकते हो आप। जब हम सर्वर पे चले गए तो हमारे तो लो ना, सर्वर पे रहो ना, क्या दिक्कत है? सर्वर पे बैठे रहो। बट आप अंकल यहाँ पे वही काम कर सकते हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि आपने कहाँ बनाया ODBC? आपने ODBC अंकल यहाँ बनाया, यहाँ नहीं बनाया यूजर पे। आपने कहाँ बनाया? सिस्टम DSN मैं इस पर ट्रेस भी नहीं कर सकता। बेटा सिस्टम DSN कौन है? एडमिन से लॉगिन हुआ है यार। आप क्या देख रहे हो? यूजर DSN और सिस्टम DSN। अगर आप सिस्टम DSN से करोगे अंकल, आप एडमिन से बनाओगे तो यूजर DSN को नहीं दिखेगा, और आप यूजर DSN से बनाओगे तो सिस्टम DSN को दिखेगा। सब देखिए, सब आ जाएगा यहाँ पे, सब आ जाएगा, बनाने ठीक से सब आ जाएगा। मैं फिर से लॉग इन करेंगे तो सारा काम तो हमारे कंप्यूटर में, जब हम सर्वर पे चले जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर की तो कोई चीज नहीं जानी। हाँ नहीं है ये क्या है? तो अंकल मान लो कल हैकर्स अगर आपका मान लो प्रोग्राम एक्सेस करता है, ही कैनॉट सी डेटाबेस कहाँ है। आज IRCTC की वेबसाइट चल रही है, कोई नहीं पता कर सकता इस वक्त IRCTC की डेटाबेस कहाँ पे। चेन्नई का एक बंदा IIT 3rd ईयर में था, 2006 की बातें हैं, उसने आधे घंटे के लिए IRCTC का डेटाबेस हैक करा। उसने मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट को फोन करा कि मैंने डेटाबेस को हैक करा है।
तुम देखो कितना पुअर तुम लोग काम करते हो। आईटी का बंदा था, उसने छेड़छाड़ नहीं करा, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट की नेगेटिविटी दिखा दी। तो मैं ये बता रहा हूँ अंकल, आप डेटाबेस के साथ आप बना ली वेबसाइट, अपलोड कर दी, अभी आप क्या कर रहे हो, आप डेटाबेस के साथ अपलोड कर रहे हो ना। बट रियल प्रोजेक्ट में अंकल जो एमएनसी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े बार प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डेटाबेस कहीं और पड़ा हुआ है। अभी तो आपका डेटाबेस एमडीएफ प्लस आपका वेबसाइट साथ ही क्या हो रहा है बोलो, अब लोड हो रहा है, छोटा मोटा काम चलता है आपका। और जहां मेन काम आपका चल रहा है बैंकिंग डोमेन का प्रोजेक्ट्स है, वहां डेटाबेस तो कहीं और पड़ेगी, यूएसए में पड़ेगी, कहीं और पड़ेगी। और वो किसको यूज कर रहा है बोलो, डीएसएन डेटा सोर्स नेम यूज कर रहा है। ये है सर, अब यहां से एक्सेस करो। अब तुम जो करते हो नॉर्मली करो बैठ, कनेक्शंस कमांड से बच्चे वाले काम, क्वेरी वही टाइम पास फालतू करते हो। अब इसको क्या पता ये डीएसएन क्या है कि डेटा सोर्स नेम में खुद यहां लिखा हुआ। हाँ, अगर बंदा अंदर यहां पहुंच गया तो मतलब ही नहीं खत्म हो गया। बस जैसे यहां पे क्लिक करेगा ना, उसको बोलेगा यू हैव इनसफिशिएंट राइट्स टू क्लिक ऑन सिस्टम डीएसएन। मैंने लॉगिन जो है एडमिन से नहीं करा है, क्लास रूम से करा। इसके एडमिन का पास सक्सेना को पता, मुझे नहीं पता। वही मैनेज करता है सेंटर, वही मैनेज करता है। आगे अरे आया। तो व्हाट इज ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओडीबीसी क्या यूज करते हैं बोलो, डेटा सोर्स में और यहाँ पे पास करते हैं। मतलब अंकल हमने ये यूज नहीं किया, ये यूज नहीं किया, आपने ये कर दिया, मामला खराब है। जहां आपने ये टाइपिंग शुरू करी इंटरव्यू देते वक्त, ये टाइपिंग शुरू करी, जहां आपने प्रोवाइडर लिख दिया, आपको देखे हंस देगा। जहां आपने प्रोवाइडर लिख दिया, प्रोवाइडर क्या पास करना पड़ेगा बोलो, डेटाबेस का नाम और डेटा सोर्स नाम पास करना। हम कुछ पास ही नहीं कर रहे, सिंपल लिख रहे हैं ये सब। चलो काम की बात करो। एनीवे, अब मैं यहां आ गया, हमने बना दिया सिस्टम डीएसएन। अंकल जी चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं। इवनिंग से कनेक्ट कर दिया, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, हो गया। अब बेटे हमें क्या चाहिए, रिजल्ट सेट चाहिए। भाई डेटा एंट्री से जो रिजल्ट सेट मिलती है उसमें क्या बोलो, फॉरवर्ड ऑन नहीं कर सकते। समझ गए, पूरी बात समझ आ गई। और रीड ऑन नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हमने ये खोला, बीबी खोला, प्रोजेक्ट में गए, रेफरेंसेस में गए, किसको ऐड किया, माइक्रोसॉफ्ट एडीओ को। बोलो किसको, एडीओ। तो लंबा टॉपिक है, नहीं चक्कर। ये माइक्रोसॉफ्ट कहाँ आ गया, अगर देखो ना बेटा, रेफरेंस अर्ली बाइंडिंग है डीएलएल, बट ये कॉम बेस्ड है। क्या बोलो, कॉम बेस्ड है। हम चूज करो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट, लो आ गया। कोई वर्जन ले लो, कोई ले लो, जो लेना है लिया कि नहीं। ले लिया, ओके कर, चूज कर लिया। ये हमारा एडीओ था। अब बेटे एडीओ में क्या था, रिकॉर्ड सेट था, और रिकॉर्ड सेट भी कर्सर को यूज करता है। बट उन दिनों उतने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं थे। तो आप देखो ना अंकल, ये पैराडाइम्स कहाँ मूव कर रहा है। हम डेटाबेस सर्वर से अब धीरे धीरे क्या बोलो, कम इंटरेक्ट करने लगे। लोड बैलेंसिंग अचीव हो रहा है यार, हो गया। अब यहाँ का बच्चे वाले काम, टीम CS एक काम, उसको पर्टिकुलर कर दो यहाँ। अब तुम इसको भी मत देखो, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक देखो, ऊपर टिकर कर दिया ग्लोबल के लिए, टीम कॉन एस न्यू वर्ड कनेक्शन। अरे यार जो नॉर्मली, इसको तुम क्या समझ लो, इसको कनेक्शन, टीम CMD एज वर्ड, यार यहाँ कमांड नहीं होता है। टीम रेक एज न्यू वर्ड रिकॉर्ड सेट। तो बेटा जिस बंदे ने डेटा रीडर करी, जिसने डेटा सेट करा, उसने क्यों नहीं सीखा रिकॉर्ड सेट। बात VB की नहीं है अंकल, बात है कि मेरे पास 3 बफर है, एक रिजल्ट सेट है, सॉरी एक रिकॉर्ड सेट है,
एक डेटा रीडर है, एक तो बिल्कुल अलग ही है, डेटा सेट। अब आ जाओ con.open, com.open, ओपन डबल कोर्स में क्या पास कर दिया, DSN इज इक्वल टू बोलो कौन, कल अब इतने चलता है कि ये दिमाग खराब करता है मेरे बाबा। ओपन क्या पास किया बोलो, अरे बोलो कौन, बोलो कौन, नहीं आया समझ में, नहीं आया। और कौन बोलो कौन, अरे बोलो, इस वाले वहां करते थे, वो एसक्यूएल कमांड के पैरामीटराइज में करते थे यार। हो गया। अब देखते काम चले तो और मूव नेक्स्ट, देखो अंकल मूव नेक्स्ट, मूव लास्ट। अब देखिए अंकल यहाँ ये जो देखिए कमाल का चीज दिखा रहा हूँ आपको, कॉमा देखिए, देखिए तो उस ब्लॉक में 4 प्रकार के कर्सर थे, इस ब्लॉक में 4 प्रकार के कर्सर, आई मीन ये नॉट 4 प्रकार के, ये क्या डायनामिक कर्सर, कहीं भी मूव कर सकता है। बट इसमें अगर आप इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, ऐसे रखो सोचो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड ऑनली हो जाएगा। चलो वो वाली बात हो गई। बट ये करने के लिए आई रिक्वायर CPU मेमोरी। अब देखिए हमने कौन सा कर्सर दे दिया, कौन सा कर्सर, डायनामिक दे दिया। अब तो मक्खन हो गया। अब नेक्स्ट करो, प्रीवियस करो, कोई डीएलोकेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो कीबोर्ड करता है, वर्ड में लड़कियां टाइपिंग करती है, क्या देखो फॉर्मेटिंग मारती है, यहाँ उधर 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 एंड प्रिंट निकल गया। अब रेड डॉट क्या करा बोलो, मूव नेक्स्ट करो। ये बेटा किसकी करोगे, रीड बोलो, किसके रीड। अरे लॉजिक देखो यार, गधे प्रोग्राम मत देखो नलायकों, कि मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने डेटा रीडर का कर्सर टाइप नहीं चेंज कर सकता, बट मैं अपने रिकॉर्ड से कर्सर टाइप चेंज कर सकता। और क्या कर दिया, पहला रिकॉर्ड RD0 लिखते थे, टेक्स्ट बॉक्स 1, तो प्रोग्राम चले तब ना यार, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कहाँ बताओ दिक्कत है। फिजिकल तो बोलो क्या कर दिया, देख बोलो कौन 0, अरे बोलो कंट्रोल C कंट्रोल V चलेगा नहीं लगता है, क्योंकि इसका प्रोवाइडर बदलना पड़ता है, कुछ और लिखना पड़ता है, याद नहीं मेरे डायरी में लिखा हुआ। हाँ आ गया। और तुमने क्या बोला, अब बेटे मेरे पास जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, निकल गया फ्रॉम टेबल ले। बात सुनिए बेटे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ब्लॉक में सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, और मेरे पास कर्सर कौन सा है मुझे बताओ। नहीं ऐसा नहीं, छत पे सारे सामान पड़े हुए हैं यार, जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत टायर्ड है यार। तो कर्सर जवाब दे रहा है मेरा, कल चलेगा छोड़ दे। तो रिजल्ट सेट में कौन है बोलो, कर्सर है। 10 गाने में एक कर्सर है, अगर कर्सर नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं होना है। तो रिकॉर्ड सेट क्या बन गया बोलो, कर्सर बन गया, रिकॉर्ड आ गए और पॉइंटर मिल गया। बट ऐसा पॉइंटर मिला, अब देखिए अंकल एक बार दिखा रहा है आपको, एक काम कीजिएगा, आप इसको भी निकाल के एक और बटन ले लीजिए, ले लिया। हम VVTV की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉजिक की बात कर रहे हैं। अब क्या कर दिया अंकल यहाँ पे, हमें VVTV से क्या मतलब, ये कर दिया, नेक्स्ट करा दिया, नेक्स्ट हो गया, ये पहला रिकॉर्ड देगा, ये क्या देगा बोलो नेक्स्ट, ये बेटा फॉर्मेट ऑन नहीं हो गया, कर रखा नमूना, रिकॉर्ड ले लिया, इसका नाम क्या दे दिया बोलो, बेटे प्रीवियस के बाद का हमें नेक्स्ट देखना है। प्रीवियस के बाद का नेक्स्ट देखना है। और यहाँ पे क्या करा, सब कुछ सेम रखा, कंट्रोल C, और क्या कर दिया बोलो, और क्या लगा दिया बोलो,
मूव डॉट बोलो पर मूव नहीं ऐसे। तो मैं अपने ब्लॉक में एक ऐसे पॉइंटर से मूव कर रहा, मैं कहीं मूव कर दूँ, मैं घूम रही कि नहीं। ये बेटा रूम क्या बोले, ब्लॉक है, एंड शी इज मूविंग दैट रूम एंड शी कैन मूव एनीवेयर। ये वाला बटन था ना, ये वाला था, वाला रिकॉर्ड आया। एक काम करो, यहाँ से देखो ना, लोग तो ओडीबीसी करा दिया लोग। अब डेटाबेस खोलो, मजा आएगा देखने में ना, वो क्या रहा, मूवमेंट कैसे रहा वो देखूंगा। अंकल यही ब्लॉक है, पर इस ब्लॉक में कर्सर नहीं, कर्सर नहीं। अब आया कर्सर। अगर ब्लॉक होता अंकल, अगर ये कर्सर नहीं होता तो नॉट रिस्पॉन्डिंग कहलाता। नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ कि ऊपर, ऐसे मूव कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, ये पूरा क्या डायनामिक। अब आया देखिए, अभी कौन सा रिकॉर्ड आया, दीपा आया, दीपू क्यों आया, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या, ये वाला है ना, प्रतीक आया, और पीवी जान के नहीं करूंगा। एमटेक अच्छा 204 आया, दीपक का याद है वगैरह, एमटेक आ गया, ठीक है। ये तो फॉर्माडोली भी कर सकता था, डेटा रीडर भी कर सकता था, यही करा चुके रीड देखो ना यार। अब जो नहीं कर सकता वो देखिए अंकल आप। तो ये मैं कैसे मूव किया, मैंने जो मूव किया था कर्सर से, हमने ऊपर चलो, ऊपर चलो, 3 चलो, आ गया 1। अब देखो अब क्या करा, अरे अब क्या करा, दीपू आ गया, फिर ये करा, रुक जाओ, फिर इस पे क्लिक करो, उसको ओपन क्लोज देखना पड़ेगा, कर दिया। अब कमाल देखो, कर्सर की टाइप देखो। अब आओ, अब अंकल जी क्या लगा दो, यहाँ ये निकाल दो और ये लगा दो, मजा आएगा, अब देखने में मजा आएगा। अब नीड नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस बना तो दिया डेटा रीडर। तो क्या बोला, हम ऐसे लाइन में गए, आप ऐसे चलो यार, पीछे बताओ, पीछे बताओ, डोंट मूव बैक। तब मैंने आपको सवाल इसलिए खड़ा करा, तब मैंने कहा पापा मुझे मजा नहीं आया, मेरे को आप सन टेम्पल दिखा दो, स्वर्ण मंदिर, और वहां है सारा मेरा मन खुश हो। तो मैं उस मंदिर की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उस मैनेजमेंट में हमें बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, इतनी भीड़, छोटा सा वो लाइन, और स्वर्ण मंदिर आया गुरु, मजा आ गया। फिर अभी लंगर खाया वहां पे, मजा आ गया। एक प्रॉपर जो होता है वो मिला, आराम से मूव करे, कोई दिक्कत नहीं आई वहां पे, ये आ गया। अब तुझे बेटे क्या होगा, अब तमाशा देख, वाला रिकॉर्ड आया, मूवनेस कर दिया चक्कर, मूवनेस वहां पे नहीं होगा। अरे 15 मिनट पहले मूवनेस कर दिया चक्कर, ये 15 रिकॉर्ड मिस हो रहा है। अब देख, ये आया, आया, देख क्या होगा, देखा, ये क्या बन गया, और जितना कर रहे हैं बोलो मूवमेंट, बोलो कहाँ डेटा बेस के ऊपर, मतलब ऐसा हो रहा है कि 3 ब्लॉक, हर के पास रिकॉर्ड और एक सीपीयू, बोलो मैंने एक CPU। फीचर हटा दिया ADO.NET से, बेटे क्यों, आपको मैंने क्या एग्जाम्पल दिया यार, 3 आदमी, एक शॉपकीपर, 5 शॉपकीपर नहीं, एक शॉपकीपर, सोचो मेरा फिर क्या होगा। इसका अल्टरनेट का डेटा हमारा ओवरहेड। बट ये आप देखते बात को समझो ना, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट इज सिमिलर टू डेटाबेस, इट एक्सपोजेज अ हायरार्किकल ऑब्जेक्ट मॉडल
of table this. ये थोड़ा करते हैं कि टेबल बंद हो गया, पर मेमोरी क्या होगी, बोलो क्लाइंट की हो गई, टेबल थोड़ा बंद हो गया। सब तो बोल तो दिया, टेबल तो है वहां पे, सब कुछ है, कॉलम भी है, प्राइमरी की भी है। और दिखाओ, और दिखाओ, लो और देखो, एडेड और डेटा सेट इज मेमोरी रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेमोरी रेसिडेंट। मेमोरी मतलब क्या हो गया, जहां पे तुमने डेटा सेट की मेमोरी एलोकेट करी वहां की रैम यूज हो, और तुमने डेटा रीडर यूज किया बेटे, तो ब्लॉक कहां बनेगा, सर्वर साइड बनेगा। रिजल्ट सेट कहां बना, सर्वर साइड, ये तो कनेक्टेड है। और देखो, और देखिएगा, लो करिए, देखो डेटा द कमांड ऑब्जेक्ट इनेबल्स ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ गया वो लाइन, डेटा रीडर provides a high performance stream of data, oh by God, stream, connected mode, तो मैं यही तो पढ़ता हूँ जरा, stream of data from the data source, an adapter is a bridge between database and data set, सब कुछ है अंकल। सर डेटा रीडर और डेटा सेट में डेटा रीडर को पास टू कैसे, वो बेटा बफरिंग, वो स्ट्रीमिंग चल रहा है ना, स्ट्रीमिंग नहीं देखो, वो तो सर्वर से कनेक्ट है, सर्वर से लाना डेटा, और डेटा सेट तो हमारे सिस्टम भी पड़ा है। अरे बंदर क्या बोल रहा हूँ, डेटा रीडर, सुनो कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं सारे, सब सोए हुए हैं, सबकी कैच उड़ी गई, कर्सर बंद, एम्प्टी कर्सर खोया हुआ, कर्सर है, ब्लॉक मेमोरी नहीं है, सिस्टम शटडाउन है, कर्सर है, क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, चलाओ कर्सर। सुन रहे, मैंने कहा 5-15 रिकॉर्ड तेरे पास है, तो मेरे को रिकॉर्ड देना, देखते तो कैसे देता है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में 15 रिकॉर्ड लाने हैं, भूल के बेटे मत काम करो डेटा सेट, कम से कम इतनी तमीज तो डेटा रीडर के पास है, आता गया देता गया, आता गया देता गया। जब तक तुमको बिजनेस लॉजिक नहीं लिखना हो, एक बार ले लूंगा, इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा, सर्चिंग करूंगा, मैनिपुलेशंस करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, तब बोलो क्या, तब बफरिंग कर देगा, तब बफरिंग कर सुनेगा। यार मैं सोचता हूँ चावल भेज दो ना, ये पर राइस खा ले यार, नहीं यार चावल नहीं, ये पर राइस नहीं खाऊंगा, क्यों, अब मेरे को तो 2 किलो चावल दे दे, बात खत्म हो गई। मैं उससे मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लिख सकता हूँ। जिसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब तुम डेटा को स्टोर करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तब क्या यूज कर, डेटा से। और तुम डेटा स्टोर नहीं करना चाहता और डायरेक्टली डेटाबेस से लेना चाहता है, रो बाय रो, तो क्या करो, कनेक्ट। मुझे कम से कम आपको रिकॉर्ड तो मिल रहा है ना। मैं आपको मैंने कहा साल का मैं अब एक बार सैलरी दूंगा, ठीक है, 12 लाख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं साल में एक ही बार सैलरी दूंगा 12 लाख, नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए, आपको मुझे पर मंथ चाहिए, नहीं ऐसा। पर लेकिन फिर आपने कहा कि मैनिपुलेशन जैसी होती है, इंसर्ट अपडेट, और ये कम करते हैं डेटा सेट, तो जो डेफिनेटली ट्रांजेक्शन वो पेमेंट फ्रॉम डेट ऑफ सिचुएशन है ना, कंकरेंसी प्रॉब्लम। अब बंद करो, मैं कुछ नहीं पढ़ा।